Done. Have you written at least the keywords that are expected? Yes, ma'am, till depreciation. Till depreciation. Was it able that हाँ recall तो हो रहा है, ये word था, ये word था, इस पे concept था, उस पे concept था. Was it that? चलो वीडियो ऑन कर लो. फ्रैंक, सुष्मित, चिराग, गणेश. In 10 minutes, have you written 28, 20, 29 तो छोड़ ही दो. Have you written 28, 20, 30, 31, at least 32 का half I can say. Have you written in 10 minutes? ठीक है, तो 10 minutes में that means 28, 30, 31, 32 का half we have written because learning है, because there is learning. So can I say this? Once we complete the entire chapter, if I give you 1.5 hour or 1 hour 15 minutes, can you write without even opening the book at least the keywords of entire PGBP? Is that possible? So what is the reason? The reason is because we have learned, because we have put that in long-term memory. And now if you find here kuch pointers are missing, so target for today is एक बार go through करो to all the provisions that you have done till now. Just go through. कुछ नहीं करना है. Word to word भी you don't have to read. Just go through कि page number first. Okay, this was fair market value I have written. This was previous year में income I have written. That means you will find, अरे I have not written this कौन सा that non-competing fees. मतलब क्या है? Okay, learn that. Because what you are able to recall right now, already done. But what you are not able to recall right now that needs learning. उसकी learning की जरूरत है. फिर कभी भी after 1-2 days again we will take the timer. Again write from 28 to 36, 37, whatever we have done. फिर एक written cumulative revision done. Again at the end of the PGBP, again I will give you a target कि today you have to write in 1 hour 15 minutes में पूरे PGBP की provision. Again it is what? Written revision. कुछ नया है क्या? This is nothing new. But if someone is giving you the target, you are doing that. And if it is self discipline, तो मैम वो सिर्फ पता है क्या रह जाता है, सेल्फ रह जाता है, डिसिप्लिन हट जाता है. Are you getting? So that is the reason. इतना टारगेट बस पूरा कर लो. And specifically life will benefit you. Like Meena, life तुम्हारे लिए ज़्यादा जरूरी है. Don't even think of switching to G drive. मुझे पता है ठंड में सुबह उठना थोड़ी सी दिक्कत हो सकती होगी, या फिर कोई और भी रीजन हो सकता होगा. आई डोंट नो कि शायद मैं जल्दी कर लूंगी कंप्लीट, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो. बट इफ यू आर लैकिंग समवेयर, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट एनी वन ऑफ यू जी ड्राइव. मैं खुद बोलती हूँ दैट विल नॉट गिव यू दैट मच बेनिफिट दैट लाइफ विल गिव. आर यू गेटिंग? चलो, तो टुडे व्हाट इज योर टारगेट? लिख लो. योर टारगेट इज अगेन 28 से 32, 37. जस्ट गो थ्रू, सिर्फ गो थ्रू करना है हमको. एंड व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ गो थ्रू? चेक कर लेंगे व्हाट हैज बीन स्किप्ड, क्या क्या स्किप हो गया. व्हाट इज द टाइमर फॉर दैट मैम? विद इन 30 मिनट्स. 30 मिनट्स में गो थ्रू एंड चेक व्हाट यू हैव फॉरगॉटन टू राइट इन 10 मिनट्स. बस खत्म. दिस हाफ आवर्स आई नीड फॉर यू आफ्टर माय क्लास फॉर योर सेल्फ प्रिपरेशन. ठीक है, बनता है ना? हाफ एन आवर तो चलता है. इतना तो टाइम है तुम्हारे पास. आई नो यू आर बिजी, बट इतना टाइम तो यू विल मैनेज. ठीक है, चलो. सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेगमेंट. मैम यस्टरडे वी हैव डन वो कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट, तो उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं. मैम इन कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट व्हाट यू हैव एक्सप्लेन, फ्रैंक यू शुड फोकस मोर ऑन दिस नाउ बिकॉज यस्टरडे यू स्किप्ड दैट. आज का लेक्चर देयर इज नो लिंकेज, बट स्टिल. Ma'am, yesterday you have told that depreciation is calculated on the basis of actual cost. So for that purpose, actual cost should be accurate. It should not have been increased. उसको increase नहीं करना है. Unnecessary, we should not increase the depreciation in order to reduce the profit. Yes, ये मैंने कहा था. So in that case, when I'm saying कि actual cost should be actual cost, so for that purpose, ma'am, section number 43, subsection 1 is there. It will tell me कि how can I calculate my actual cost. ये मुझे बताएगा
कि how can I calculate my actual cost. So actual cost means ma'am whatever is the purchase price, whatever is installation charges, whatever are transportation charges, whatever are the trial expenses, trial run expenses. But ma'am among the trial run expenses, if I earn something, because trial run में product will be formed, and if I even sell it at discount and whatever, so that will reduce my actual cost. Then a subsidiary specifically for the purpose of asset, that is also reduced. And specifically ma'am ITC, if you are availing ITC in IDT, then tax will not be counted in my actual cost. But if I am not getting ITC over there, then I should add taxes to my actual cost. We have already in yesterday's class seen the linkage of IDT and DT for two purposes, that is subsidiary, and second for the purpose of this tax. We have seen that yesterday. इसके बाद मैम क्या होता है एक्चुअल कॉस्ट में, देयर इज सम एक्सप्लेनेशन गिवन विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज गिवन अंडर 43 सबसेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशन. मैम व्हाट आर 43 सबसेक्शन 1 का एक्सप्लेनेशन? वो बोलता है कि क्रक्स क्या है. The crux is we will not let the actual cost enhance, we will not let the actual cost increase unnecessary to increase the depreciation. ठीक है, तो उसी को फोकस करते हुए वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट. उसमें सबसे पहला था साइंटिफिक रिसर्च वाला असेट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू रेगुलर बिजनेस. तो मैम व्हेन साइंटिफिक रिसर्च वाला असेट इज ट्रांसफर्ड टू द रेगुलर बिजनेस, मैम अंडर सेक्शन 35 साइंटिफिक असेट पे 100% रिडक्शन इज अलाउड. तो व्हेन नाउ इट इज ट्रांसफर्ड टू रेगुलर बिजनेस, अब फिर से कोई एक्चुअल कॉस्ट नहीं हो सकता बिकॉज ऑलरेडी 100% रिडक्शन गिवन. सो नाउ एक्चुअल कॉस्ट विल बी nil. Second ma'am, if gift inheritance में my asset has been transferred, an asset has been transferred as gift or inheritance, whatever, if that asset was used for the purpose of business earlier, so for now it will be WDV will be the actual cost. But if it is not used for the purpose of business, the actual cost जो वहां पे थी that will continue to be actual cost for me here. Then ma'am इसके बाद क्या आता है? इसके बाद there is एक कॉन्सेप्ट था. कौन सा कॉन्सेप्ट था? इफ यू हैव एक्वायर्ड द असेट, इफ यू हैव एक्वायर्ड द असेट, और पता है इंटेंशन क्या है? टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन. व्हाई यू एक्वायर्ड द असेट? टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन. एंड उसमें वी नो दैट वन इज प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी एंड अनदर इज लॉस मेकिंग. लॉस मेकिंग रिमेंबर एग्जांपल में था XYZ एंड प्रॉफिट मेकिंग वाज रिलायंस. तो इन दैट केस आल्सो मैम सबसे पहले इफ AO फाइंड्स के यू कि तुम्हारा इंटेंशन वाज टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन, इसलिए यू हैव एक्वायर्ड द असेट, तो पता है AO क्या करेगा? जॉइंट कमिश्नर की परमिशन लेगा एंड आफ्टर टेकिंग द परमिशन ऑफ द जॉइंट कमिश्नर ही विल कैलकुलेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट. इसके बाद नाम था री एक्विजिशन ऑफ द असेट सोल्ड. जो असेट हमने ही सेल की थी, वी हैव री एक्वायर्ड दिस. तो यू रिमेंबर पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4 को सेल एंड अल्टीमेटली मेरे पास ही मेरी असेट वाज कमिंग बैक. तो इन सच अ केस मैम व्हाट इज द री एक्विजिशन प्राइस एंड व्हाट इज द WDV फॉर लास्ट ओनर? लास्ट ओनर का WDV क्या है एंड व्हाट इज द री एक्विजिशन प्राइस? व्हिचएवर इज लोअर विल बी योर एक्चुअल कॉस्ट नाउ. देन मैम था सेल्स एंड लीज बैक. तो आई हैव सोल्ड माय असेट एंड वही असेट मेरे को लीज बैक होके आ रही है. तो मैंने असेट को सेल किया, सेम असेट इज बीइंग लीज बैक टू मी. और मैम लीज इज नॉट काउंटेड इन इनकम टैक्स. इनकम टैक्स में तो लीज काउंट ही नहीं होता है. तो इन सच ए केस आल्सो क्या बोलते हैं? प्रीवियस ओनर का व्हाट वाज द WDV वही कंसीडर करेंगे फॉर दैट प्रॉपर एग्जांपल वी हैव टेकन. फिर मैम दो चीजों को वी हैव कंपेयर्ड. क्या? असेट ब्रॉट इनटू द बिजनेस, असेट ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय नॉन रेसिडेंट, है ना? और एक और क्या था? बिल्डिंग पुट टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. उधर था मैम असेट ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय नॉन रेसिडेंट. वहां पे नॉन रेसिडेंट स्पेसिफिकली वाज ब्रिंगिंग द असेट, और यहाँ पे वेदर नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट वाज ब्रिंगिंग द बिल्डिंग. बिल्डिंग ब्रिंग करने का मतलब ये कि यहीं पे बिल्डिंग एक नॉन रेसिडेंट की, नाउ ही इज यूटिलाइजिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. सेकेंड डिफरेंस वाज मैम उधर asset लिखा है means any type of movable asset actually it means because brought into the business बोला है, brought into India बोला है पहले. और यहाँ पे क्या बोला है? in such a case when building is brought, तो building को उठा के नहीं ला सकते, simply building है वहां पे, और वहां पे any type of movable property is there. Then
उधर क्या लिखा था, व्हेन इट वाज बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए लिखा है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन, बट व्हेन इट कम्स टू माय असेट वाला पार्ट दैट नॉन रेसिडेंट ब्रिंग इट टू द बिजनेस, वहां पे क्या लिखा है, एक्चुअल कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन। वी हैव अंडरस्टूड द रीजन व्हाई ओरिजिनल कॉस्ट, तो हमने कल समझा था बिकॉज रिवैल्यूएशन इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ बिल्डिंग, नॉट इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, देन मैम अगर 100% सब्सिडरी होल्डिंग को देता है, होल्डिंग 100% सब्सिडरी को देता है, एमलगमेशन है या फिर डीमर्जर, इन ऑल द केस if the asset was previously used for the purpose of the business, तो अगर asset previously for the purpose of business use होता है तो WDV, and if it is not used for the purpose of business, so cost will be the cost. Ma'am, interest up to put to use will be counted in your actual cost. Ma'am, taxes, as I told na, if you have paid taxes but no credit is available, it will be counted in your actual cost. Understood? Have we done all this thing? Yes मैम, ये सारा की सारा we have done. और इसके अलावा कुछ किया था क्या मैम? एक्चुअल कॉस्ट में we have to reduce one more thing. क्या रिड्यूस करना होता है इसमें? रिड्यूस करो if in a single day, single transaction 10,000 से above you are paying in cash, तो मैम वो एक्चुअल कॉस्ट में काउंट नहीं होगा. रिड्यूस योर एक्चुअल कॉस्ट बिकॉज वी आर नॉट अलाउड द डेप्रिसिएशन. अंडरस्टूड? हैव यू डन ऑल दिस थिंग्स? अब आ जाए आगे. अब हम आते हैं पेज नंबर, कम टू 117. अभी भी डेप्रिसिएशन ही चल रहा है. इट इज ओनली डेप्रिसिएशन. द लेंथीएस्ट पार्ट ऑफ पीजीबीपी इज ओनली डेप्रिसिएशन. कम टू पेज नंबर 117. चलो, नाउ इफ यू सी 117, मैम ये सेक्शन, ये जो पेज नंबर 117 है, इस पे क्या लिखा है? हियर इट इज रिटन डेप्रिसिएशन. ठीक है, बट डेप्रिसिएशन फॉर द पर्पस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट. ये डेप्रिसिएशन मैम किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट्स. दैट इज पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन वालों की बात चल रही है. ठीक है, अब एक बात मेरी समझो मैम, व्हेन इट इज नॉट पावर जनरेशन यूनिट और पावर जनरेशन यूनिट हैज नॉट टेकन एसएलएम, तो मैम पता है हम कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं? वी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ WDV. इफ इट इज नॉट पावर जनरेशन यूनिट or the power generation unit has not chosen straight line method of depreciation, तो मैम हम तब क्या करते हैं? We choose WDV, and ma'am WDV is applicable, you know what, on block of asset. Yes, समझ में आ गया. But ma'am when I am saying कि my power generating unit is utilizing straight line method, वो किसको चूज करता है? स्ट्रेट लाइन मेथड को. तो मैम इफ यू आर यूटिलाइजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, तो मेरा रास्ता क्या ब्लॉक ऑफ असेट की तरफ जाएगा? वुड आई मूव टू ब्लॉक ऑफ असेट? तो वो बोलेगा नो, यू कैन नॉट मूव टू ब्लॉक ऑफ असेट. क्यों? बिकॉज इफ यू चूज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आपको आना पड़ेगा असेट वाइज मेथड. अब ये मैम असेट वाइज मेथड में क्या होगा? नाउ लेट अस सपोज हमने एक असेट परचेज किया. वी हैव परचेज्ड अ असेट. तो ये ले लेते हैं हम द असेट दैट वी हैव परचेज. ये रही मेरी असेट दैट आई हैव परचेज. अब इस असेट में क्या होगा मैम पता है? सबसे पहले व्हेन यू हैव परचेज्ड इट वुड बी एक्चुअल कॉस्ट. हाँ, बिकॉज यू हैव परचेज्ड एन असेट, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ठीक है मैम, आफ्टर परचेस ऑफ असेट सपोज यू अप्लाई डेप्रिसिएशन. तो मैम व्हेन टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट डेप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड, इट विल गिव मी माय रिटर्न डाउन वैल्यू. ये भी सही है? एनी डाउट टिल नाउ? कि मैम एक्चुअल क्या किया हमने? असेट परचेज की. आफ्टर द परचेस ऑफ द असेट हमने क्या किया? ये असेट हमने परचेज किया.
आफ्टर परचेस ऑफ दिस असेट क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन इज अप्लाई, डेप्रिसिएशन अप्लाई करने के बाद व्हाट वी गेट WD, ठीक है। अब मैम सपोज, अब और क्या सपोज करना है, सपोज यू सेल दिस असेट, आप सेल कर रहे हो इस असेट को, तो अगेन यू वुड हैव व्हाट, सेल्स प्राइस। समझ रहे हो, तीन चीजें हैं, क्या क्या है मैम, सबसे पहले इफ आई परचेज द असेट आई हैव एक्चुअल कॉस्ट, इफ आई अप्लाई डेप्रिसिएशन आई हैव WDV, इफ आई एम हैविंग सेल्स प्राइस, तो ये तीसरी चीज आ रही है पिक्चर में, दैट इज सेल्स प्राइस, ठीक है। इतना मुझे समझ में आया। तो मैम ये क्यों, किस पर्पस के लिए तीन चीजों को लिखा, व्हाई वी हैव रिटन एक्चुअल कॉस्ट, व्हाई वी हैव रिटन WDV एंड व्हाई वी हैव रिटन सेल्स प्राइस, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, क्या हुआ इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट। पावर जनरेटिंग यूनिट के लिए हम कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करें, क्यों, क्योंकि मैम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट WDV का मेथड, वी नाउ रिमेंबर सेक्शन 50 की आइदर एंटायर ब्लॉक ऑफ एसेट सीजेस या फिर इवन अ सिंगल एसेट हैज बीन सोल्ड फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ एसेट, बट उसका जो सेल्स प्राइस है वो एंटायर ब्लॉक ऑफ एसेट से बहुत ज्यादा है। तो दो केस में यहाँ पे तो हम गेन कैलकुलेट करते हैं, बट मैम व्हाट अबाउट दिस, जब हम क्या चूज करते हैं, व्हेन वी चूज स्ट्रेट लाइन मेथड, हाउ वी विल कैलकुलेट द कैपिटल गेन, हम तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पस अब लेट अस सपोज कि ये जो मैंने असेट खरीदा था, द असेट दैट आई हैव परचेज, ये रहा हमारा वो असेट। लेट्स से सेम एग्जांपल लेते हो दैट हैज बीन गिवन इन बुक, कि लेट्स से ये जो असेट है इसका एक्चुअल कॉस्ट इज 100 रुपीज, 100 rupees is my actual cost, okay ma'am। let's say depreciation that you will apply, वो depreciation कितना है, depreciation is 10%, okay। now the first year when I have purchased the asset, the first year when I have purchased the asset, so it is for 100 rupees, depreciation is 10%, and now suppose in third year I will sell the asset, third year mein I will sell it। now you only tell me WDV क्या होगा थर्ड ईयर पे, सबसे सिंपल क्वेश्चन है अभी तो, कैलकुलेट WDV 80। करो सब लोग कैलकुलेट करो, निकालो कैलसी, सबसे भारी जरूरत पड़ी हुई कैलसी की। 81 are you asking 81. or you are telling? 81 81 वेरी गुड, वेरी मतलब कितने वेरी लगा दो यूनिवर्स के, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने सिंपल कैलकुलेशन में यू आर कंफ्यूज्ड। 73 में 70,000 70,000 80 मतलब 70%। 72.9 70% तुम पहले डिसाइड कर मैम थर्ड ईयर बिगिनिंग या थर्ड ईयर कंप्लीटेड मैम, थर्ड ईयर बिगिनिंग ऑफ 70 थर्ड ईयर कंप्लीटेड मैम। अब वैलिड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैम इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर या फिर एट द स्टार्टिंग, मिड में या एंड में। अब ये कॉन्सेप्ट मुझे अभी यहाँ बताना पड़ेगा। व्हेन यू सेल द असेट, तुम्हें एक्चुअल में सेल्स करते वक्त यू हैव टू सी वो 180 डेज या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट चेक करना होता है, टाइम लिमिट कुछ अप्लाई करते हो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द असेट। थर्ड ईयर मीन्स थर्ड ईयर, और सेल करते वक्त डू यू क्लेम डेप्रिसिएशन। अब ये लॉजिक भी तुमको पता होना चाहिए। सोचो, बुक का भले ही मैंने एग्जांपल लिया है, कसम है अटेम्प्ट की तुमको कि अगर बुक में देखा भी कि आंसर क्या है और देख लिया है तो अब वो कसम वैलिड नहीं होगी। नहीं बताऊंगी मैं, यू ओनली कैलकुलेट कि एक्चुअल में 81 है 70,000 है, मीनल हाउ इट केम टू बी 70,000। आई मीन टू से 70 बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये भी आ जाता, तुम तो कंफ्यूज हो जाओ। पावर जनरेशन वाला है क्या? बताओ भैया, चलते क्लास नंबर 11 में।
उस जमाने में जब हम असेट वाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया करते थे। चलो मैम, व्हेन इट इज पावर जनरेटिंग यूनिट, मैम एसएलएम मेथड फॉलो होता है। यस, और इतना तो हमको अब पता चल गया, एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, और 100% का 10% इज 100 का 10% इज 10 रुपीज। मैम फर्स्ट ईयर एंड हुआ, दिस इज द ओपनिंग में इट वाज 100, ठीक है। मैम फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन वी हैव सब्ट्रैक्टेड कितना, 10 रुपीज, दिस गिव्स मी 90। मैम सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन वी सब्ट्रैक्ट, मैम 90 का 10% कितना होता है, 10 रुपीज। SLM में तो अब जो लोग SLM 81 बोल रहे थे, आर यू गेटिंग, यू वर एक्चुअली अप्लाइंग Ma'am. WDV मेथड। ma'am, here Wait, we have wait, the wait. option, ma'am. wait, if you were saying कि मैम 9 लगेगा, तो in that case you were applying a wrong method। तुम क्या कर रहे थे, रिटर्न डाउन वैल्यू पे 10% अप्लाई कर रहे थे, बट यहाँ पे हम अभी क्या सीख रहे हैं, असेट वाइज, तो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मैम फॉर द थर्ड ईयर व्हाट इज माय वैल्यू, एक्चुअली माय वैल्यू फॉर द थर्ड ईयर इज 80। अंडरस्टूड, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला कि थर्ड ईयर में इट इज सोल्ड, बट अगर वो बोलता ना सोल्ड एट एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो एंड में तो यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन, बट यहाँ पे जब बोला ओनली थर्ड ईयर मीन्स बस स्टॉप हियर। थर्ड ईयर के लिए दिस विल बी योर वैल्यू, थर्ड ईयर के लिए दिस इज गोइंग टू बी योर वैल्यू। तो मतलब मैम अब हमको 3 चीजें मिल चुकी, क्या क्या मिल गया, we have got the actual cost 100, we have got the WDV for the third year that is 80 rupees, and now मैम सेल्स प्राइस कितना ले, तो बोलते केस नंबर A सेल्स प्राइस इज 72, केस नंबर B your sales price is 89, and मैम केस नंबर C my sales price is 117। अब मैम जब भी नॉर्मल सा अकाउंट्स का रूल भी रिमेंबर, क्या है अकाउंट्स का रूल कि मैम इफ वी वांट टू सेल अ गुड, हम फिनिश गुड नहीं सॉरी, इफ वी वांट टू सेल अ असेट, तो मैम असेट सेल करते वक्त वी विल चेक सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नहीं मैम, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड, दैट मीन्स यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं, यहाँ वी विल चेक WDV। तो मैम अभी आपका सेल्स प्राइस आप क्या लेते हो, फर्स्ट वाला दैट इज माई 72, तो 72 माइनस माई WDV कितना था, WDV 80। नाउ यू ओनली टेल मी, इज इट प्रॉफिट और लॉस? Loss. minus 8, that is loss. Second one, again sales price now is kitna, sales price is 89, but WDV will not change, तो मैम कितना हो गया, WDV is 80, now it is profit। ये तो बहुत इजी है मैम। when it is loss, simply what we will do, अगर loss है तो we will debit it to the P&L, simple। डेबिट मतलब अरे P&L में डेबिट साइड क्या आता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्लास नंबर 11, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड डेबिट ऑल द लॉसेस। तो मैम दिस इज माय लॉस, आई हैव डेबिटेड इट, खत्म। मैम क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, तो मैम यहाँ पे आई हैव गॉट द गेन, तो गेन मेरा क्या होगा, क्रेडिट हो गया, इतना तो वैलिड हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 11 से यू आर डूइंग। बट अभी सारी की सारी प्रॉब्लम पता है किसमें, इफ माई सेल्स प्राइस इज 117, माई सेल्स प्राइस इज 117, एक मिनट ना, क्यों एक मिनट, देखो आप मैम एक्चुअल कॉस्ट कितना है 100, सेल्स प्राइस इज गोइंग इवन बियॉन्ड माई एक्चुअल कॉस्ट। सेल्स प्राइस तो है बट माई सेल्स प्राइस इज गोइंग इवन बियॉन्ड द एक्चुअल कॉस्ट। तो मैम जितना मुझे पता है कि कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है, हाउ वी कैलकुलेट कैपिटल गेन, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल गिव मी माय कैपिटल गेन, एंड सेल्स प्राइस माइनस WDV दैट विल गिव मी आइदर प्रॉफिट और लॉस, एज द केस में भी। और मैम इस केस में तुम बताओ लॉस लिखूं क्या मैं, शुड आई राइट लॉस ओवर हियर कि मैम सेल्स प्राइस माइनस WDV, प्रॉफिट और लॉस बोलना भी चाहिए मुझे,
बोलो, should I No, write ma'am. here? Short term capital gain, short term capital. Only profit. When already my sales price is Profit. greater than actual cost, ma'am, don't even make a mistake of writing loss here. Obviously यहाँ पे क्या Only होगा? profit. It would be only profit. But this profit will be credited to P&L. But this is my capital gain. Now you only calculate. I have given you sales price, I have given you actual cost, and you know the WDV. बता दो कितना capital gain, कितना will be the profit to the credit of P&L. 17 capital gain 17 capital gain and or 20 20 profit. 17 capital gain and profit is 20. 20. Pakka? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How you calculated this 20? Because, ma'am, if we do sales price, that is 117. If we do WDV, it is coming to be 80. इसका 117 and 80 को अगर माइनस करेंगे कितना होता है? 37. 37. मैम 17 तो हम ऑलरेडी कैपिटल ये गेन तो ले चुके हैं 37 है. Wait. So if I am writing this, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, because if you follow blindly this कि मैम sales price minus WDV ही credit to the P&L, नहीं. Remember one thing, out of this 17 is already gone to capital gain. Now 37 minus 17 you will do, or remaining 20 जो है only that will go to the P&L. Understood? So that means if I am having what? अगर मेरा sales price is greater than the actual cost. अगर मैम my sales price is greater than my actual cost, so sales price minus actual cost will give me difference, will give me capital gain. अब इतना तो capital gain done, but now मैम sales price and WDV का difference total आएगा, overall total. उसमें से I will subtract कि capital gain के लिए कितना booking हो चुका है. This is the booking for capital gain. The rest will be credited to P&L. And एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन भी किसका करना है? यू हैव टू डू दिस थर्ड वाले केस का रिवीजन ओनली, बिकॉज रेस्ट यू विल नो, डेबिट एंड क्रेडिट इन केस ऑफ एसएलएम. रिमेंबर यू हैव टू रिवाइज ओनली थर्ड नंबर केस फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम. तो क्या इंपॉर्टेंट मार्क करोगे? थर्ड केस. Ma'am, in SLM also it is long term, short term. Array depreciable asset, whether SLM you apply, whether you apply WDV. If you have gain, in case of depreciable asset, it is always short term capital gain. So it doesn't matter कि whether it is WDV, SLM, short term capital gain है, रहेगा. Understood? आया? Now, तो ये क्विक रिव्यू क्या करो, सिर्फ 2 मिनट्स आई एम गिविंग फॉर अ क्विक रिव्यू. बुक में देख लो 117 पेज पे. डन. अब मैम हाँ, यहाँ पे टर्मिनल डेप्रिसिएशन अलाउड एज डिडक्शन ऐसा क्यों लिखा हुआ है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्यों नहीं लिखा हुआ है मैम? कहाँ पे बोल रहे हो? मैम टर्मिनल डिप्रिशिएशन या बैलेंसिंग चार्ज के बजाय हम सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस भी तो लिख सकते थे, तो ये दोनों टर्म लिखने का Why क्या they are saying ना लॉजिक? कि एंड में
when you calculate straight line method, obviously it will go to the debit if you have losses. But ये बोलते हैं कि end में what is the maximum depreciation we can allow? They have given a terminology that it is terminal depreciation. Just a terminology used in case of asset. Okay. Done? इसको लॉस नहीं मान के मैम हम टर्मिनल डेप्रिसिएशन नहीं मानेंगे और मैम इसका ऐसे कैपिटल गेन में होता है मैम कैपिटल गेन से इसको कुछ नहीं नहीं मतलब ये जो नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं है समझो ना, why you are saying कि यहाँ पे कैपिटल गेन का तो कॉन्सेप्ट विल नॉट अराइज बिकॉज तुम्हारा कितना निकला है, 8 का लॉस निकला है, ठीक है, 8 का लॉस है। कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट कब अराइज होता है? जब सेल्स प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट में बात है। When there is sales price minus actual cost, तब कैपिटल गेन या लॉस का कॉन्सेप्ट अराइज होता है। इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन असेट वाइज मेथड, हम ब्लॉक ऑफ असेट पे नहीं है। ब्लॉक ऑफ असेट में यू कंपेयर विद द WDV, बट व्हेन इट इज असेट वाइज तुम कैपिटल गेन में एंटायरली क्या कैलकुलेट करते हो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड सेल्स प्राइस को ही कंपेयर करते हो, एंड दैट इज असेट वाइज। तो फॉर दैट रीजन यहाँ पे यू कैन नॉट से कि मैम ऐसा कर दे उसको डेबिट लिख दे। उन्होंने स्पेसिफिकली टर्मिनोलॉजी क्या यूज किया है? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं पीजीबीवी में कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो सकता है मगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अराइज नहीं होगा, वो डेप्रिसिएशन में ही होगा। पार्डन मैम इन शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं पीजीबीवी के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो सकता है क्योंकि कॉस्ट से ऊपर हो सकता है मगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अराइज नहीं होगा। एग्जैक्टली, बिकॉज एसेट वाइज चल रहे हैं ना, वी आर गोइंग एसेट वाइज, तो वी आर नॉट कैलकुलेटिंग दैट। यहाँ पे अगर लॉस है तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन उसको कंसिडर करो। यहाँ पे अगर नॉर्मल गेन है, नॉर्मल गेन मींस लेस देन एक्चुअल, तुम्हारा क्या जा रहा है एक्चुअल कॉस्ट वाला कंपैरिजन, देन से कि ये क्रेडिट साइड ऑफ द P&L, बट व्हेन इट इज गोइंग अबाउट द एक्चुअल कॉस्ट सिंपली तुम्हारा क्या आ जाएगा? ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो नाउ यू डू, ये वाला भी अपन कर चुके हैं। यस्टरडे ओनली वी हैव डन दिस सब्सिडरी वाला पॉइंट। एक बार क्विक रीडिंग डू द सब्सिडरी वाला पॉइंट। Then after subsidy we have interest, वो भी we have done। Stop at unabsorbed depreciation। Ma'am, could you able to hear? Yes, Ma'am, the book we are referring is BB Compact only. No? yes, never। Yeah, but currently I'm having the previous attempts on, so the page number differs, I think. Just go for reference of the amendment first because we have amendments, and you have to then find out Okay. previous certain book। Right now I'm not having। थोड़ा Okay. सा indexation में you will find out। Indexation में they have given section wise। Yeah, sure. Yeah. Done? Now come to again ये सब्सिडी वाला पार्ट। सब्सिडी में मैम क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है एनी सब्सिडी, ग्रांट्स, इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक, एनीथिंग गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड एज एन इनकम। Have we done this thing yesterday only? कि subsidy given by central government, state government has been considered as an income. It is considered as an income. But ma'am, कुछ missing हो रहा है। क्या missing हो रहा है? If subsidy is given by central government, state government,
if it is linked to an asset, सुनना मेरी बात ध्यान से मैम, देखो क्या बोल रहा है वो, आई एम टॉकिंग अबाउट सब्सिडरी, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, सब्सिडरी, ठीक है। तो व्हेन इट इज सब्सिडरी, मैम सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाँ सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, either in relation to an asset or if it is not related to asset। अब मैंने इसको यहीं स्टॉप कर दिया, क्यों स्टॉप कर दिया? अगेन आई वांट टू टीच यू अ लेसन। क्या यू हैव डन रीडिंग? अभी सब्सिडी का रीडिंग यू हैव डन, सो हैव यू फोकस्ड ऑन दिस फैक्ट कि लाइन तो पूरी लिखी हुई है कि सब्सिडी टू द बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनकम, पर हैव यू ट्राइड टू फोकस what if subsidy related to asset, what if subsidy is not related to any asset? क्या तुमने ये फोकस करने की कोशिश की, या फिर जस्ट प्लेन रीडिंग कि सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ट्रीटेड एज एन इनकम अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24? बी ऑनेस्ट, ये तो पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, वी हैव डन यस्टरडे, बट वाज इट अ प्लेन रीडिंग और यू ट्राई टू फोकस? ऐसा हुआ तो क्या होगा? टेल मी। ये तुम चुप क्यों हो जाते हो? कितना फिर मेरे को इंडिविजुअल इंटरव्यू लेना पड़ता है। Ma'am, while reading, Yes, ma'am, देखा हूँ। just remembered about that related to In asset reading, will be ma'am. reduced and otherwise treated as income. Okay, so while reading you remember, suppose yesterday we have not done that asset one, suppose, क्या तुम फिर सोच पाते कि ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, तुम होते तो क्या होता, नहीं होते तो क्या होता? No, ma'am. No, ma'am. What I'm trying to say, ये नहीं कि classes are important, I am not doing marketing over here, ठीक है? I am saying read in between the lines. When you do DT, when you do IDT, when you do law, ये तीन चीजें ऐसी है, mandatory, 100% compulsory, read in between the lines, because institute तो in between the line read करता है और हम ऊपर ऊपर से read करते हैं। इंस्टीट्यूट एडजस्टमेंट इन बिटवीन द लाइन से देता है और हम पढ़ के ऊपर ऊपर का जाते हैं, एंड देन वी फाइंड कि एडजस्टमेंट इज डिफिकल्ट। सो व्हेनेवर यू ट्राई टू रीड, एटलीस्ट एक एक वर्ड पे एक सेकंड के लिए, फर्स्ट टाइम इट विल टेक टाइम, एक वर्ड पे सोच लो, ओके इंसेंटिव दिस बाय गवर्नमेंट। अब सपोज करो मैं सिखा रही हूँ मैम, इंस्टेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्रॉस एनजीओ हैज गिवन सब्सिडी, किसने दिया? प्राइवेट कंपनी हैज गिवन सब्सिडी। तो मैम प्राइवेट कंपनी ने मुझे सब्सिडी दिया, तो इसको तो इनकम कंसीडर कर रहे हैं हम, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन दैट। व्हाट इफ अ प्राइवेट कंपनी गिवन मी सब्सिडी, क्या उसको कंसीडर नहीं करेंगे एज एन इनकम? तो वुड इट बी कंसीडर्ड हियर 224 में, या कि वो यूं भी इनकम कंसीडर होना ही चाहिए? इनकम कंसिडर होना चाहिए Income पर as सेक्शन per 28। 224. तो इसका मतलब ये बताओ, सेक्शन नंबर 224 कहता है कि एनीथिंग यू रिसीव एंसिलरी आल्सो यू रिसीव फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, वो भी क्या होगा? दैट विल बी काउंटेड। So I was explaining you कि मैम specifically they have included central government, state government का subsidy counted as income, but इसका मतलब ये नहीं है कि private company if given subsidy that is not considered as income, because वो already बहुत time से income में already included है। If you get any ancillary benefit perquisite due to your business or profession, whether convertible into money or not, section number 28 में you will find this thing, perquisite or any benefit whether convertible into money or not you get from your business or profession, section 28 कहता है that is income, but specific explanation given with respect to subsidy by central or state government। ये एक बात हुई। Second, ma'am suppose if it is related to asset,
So you say कि whatever is the actual cost of asset, we will remove that subsidy. बिल्कुल, whatever is the actual cost of asset, we will remove that subsidy. तो मैम इसका मतलब ये है, if I am removing the subsidy from my actual cost, on this amount of subsidy, no depreciation. Can I say yes or no? If no depreciation here. बोल सकती हूँ. But ma'am, if it is not related to asset, if it is not related to asset, अब चाहे मैम वो asset से related हो और it is not related to asset, either we will remove from the actual cost और यहाँ पे we are counting it as an income. Ma'am, both the cases we are not getting any benefit, whether subsidy received from central government, state government, whether subsidy related to asset, whether subsidy not related to asset, even ma'am if subsidy is received from other than central government, state government, again counted in income. So subsidy नाम का whatever it is, but if it is related to asset, then only it will not be, it will be reduced from actual cost. वो भी benefit ही reduce कर रहा है, and here it is directly taxable. Understood that thing? अभी और इसमें इंक्लूड करूं मैम, इफ एक्चुअल कॉस्ट पेड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, नो इश्यूज, ओके, बट greater than 10,000 in cash, so reduce cash amount from actual cost. Are you getting? और इसमें मैम पता है क्या कर सकते हैं, even if asset purchased business purpose के लिए used, not used for business purpose, business purpose depreciation allowed, business purpose नहीं है तो no depreciation is allowed. मतलब क्या करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, asset related whatever points are there, एक ही में if it is this, if it is not this, if it is this, if it is not this, सब कुछ एक में cover हो सकता है. One single point can be covered. ये सब asset related था कि when you will take, when you will not take for the purpose of depreciation. This is entirely for that. आया? Giving you 1 minute, quickly note down. Done. Yes, ma'am. For the
मैं एक बार इसको फिर से बना रही हूँ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग क्लीन। वो बहुत रफली था, ठीक है, बिकॉज आई वांट टू इंक्लूड वन मोर पॉइंट हियर।
Done. Then what you have written there for the benefit of individual or LPG. LPG. हाँ वो है ना अपना सिलेंडर से रिलेटेड भी गेट द सब्सिडी ना 200 का, दैट इज नॉट कंसिडर्ड इनकम. Cylinder. डन. चलो अब मैम एक चीज और बची, छोटी सी, बहुत छोटी सी. क्या मैम? वी हैव डेप्रिसिएशन. ओके, वो ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन डन. फाइनली डेप्रिसिएशन डन. एक लास्ट पॉइंट बचा है, वो क्या मैम? सपोज वी हैव प्रॉफिट ऑफ 10 लाख रुपीज. कितने का प्रॉफिट है? सपोज प्रॉफिट ऑफ 10 लाख. एंड सपोज सेक्शन नंबर 35 जो आपने बोला था कि देयर इज साइंटिफिक रिसर्च, 100% depreciation is allowed. वहाँ पे 100% you will get the depreciation. My asset is of 25 lakh. 100% मतलब 25 lakh का deduction I will get. Either profit कितना है? Only 10 lakh. चलो इसको भी छोड़ते हैं मैम. 10 lakh profit है. Suppose I have purchased an asset of how much? Suppose I have purchased an asset of 80 lakh. And 40% उसका depreciation rate है. कितना है? 40% is the depreciation rate. So if I calculate आजकल 80 लाख का 40% करो कैलकुलेशन, लो कैलकुलो. 32. Very good, you know that. तो मैम 32 लाख, 10 लाख में से 32 लाख if we subtract तो still 22 लाख का unabsorbed depreciation. Simple. So ma'am, what is this? Unabsorbed depreciation. That means you were having a profit of 10 lakh. Okay, but depreciation actually coming to be 32 lakh. So I am able to utilize only 10 lakh. Ma'am, depreciation mandatory है. देना पड़ेगा. They have to give it. But in this year my profits are not sufficient. That is the reason. सुनो. That is the reason why depreciation is carry forwarded. वो एक word mandatory. एक सिंगल वर्ड है कि डेप्रिसिएशन को देना मैंडेटरी है. तो बिकॉज इट इज मैंडेटरी, तो इन सच अ केस अभी तो 10 लाख ही मिला. व्हाट अबाउट दैट 22 लाख? मैम क्यों इनडेफिनेट लाइफ टाइम तक डेप्रिसिएशन नीड टू बी कैरी फॉरवर्ड? बोलो वो एक वर्ड, मैंडेटरी. If not possible in this year, we will wait for second year. Not possible in second year, third, fourth, fifth, sixth, but देना पड़ेगा. It is mandatory. वो एक वर्ड मैंडेटरी है जिसके रीजन से इनडेफिनेट टाइम तक इट कैन बी कैरी फॉरवर्डेड. बिकॉज ये क्या है? मैंडेटरी. बिकॉज इट इज मैंडेटरी. तो ये कॉन्सेप्ट आया. कौन सा कॉन्सेप्ट? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए आया. अंडरस्टूड दिस थिंग? तो क्या एक छोटा सा वर्ड मैंडेटरी. अब एक चीज मैं और बता रही हूँ. बिकॉज मैंडेटरी से थर्ड लिंकेज आता है. I am linking third thing with the word mandatory. तो क्या है मैम वो mandatory से third linkage? The students who have done alternate minimum tax with me, they would know now. ठीक है मैम? There is the concept of alternate minimum tax. ये क्या है मैम alternate minimum tax? That if you are a person, you are an assessee, I would say, you are an assessee other than company. Other than company, if you are an assessee, compulsory क्या है? You have to pay minimum tax. Ma'am, how can I calculate that minimum tax? This minimum tax will be calculated at the rate of 18.5% on adjusted total income. Ma'am, what is this adjusted total income? तो बोलते हैं adjusted total income means we will take your net total income. जो तुमने नेट टोटल इनकम कैलकुलेट किया है, वी विल टेक दैट नेट टोटल इनकम. हम क्या लेंगे? वो नेट टोटल इनकम लेंगे. एंड सपोज इन दिस नेट टोटल इनकम यू हैव टेकन सेक्शन नंबर 10AA का डिडक्शन, एड बैक. अभी एड बैक करो. हम बताते हैं क्या करना है. एड बैक 10AA का डिडक्शन. इफ यू हैव टेकन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA to under section 80 RRB का डिडक्शन you have taken except ATP. Why I am taking overall AMT? तुम्हारा यहीं पे AMT अब भी हो जाएगा.
ये इतना छोटा टॉपिक है that you will cover right now in 5 minutes to 10 minutes. So pay full attention because we are doing AMT. Why? Because of this word, mandatory depreciation. तो एक टॉपिक का लिंकेज यहाँ पे भी है, तो we will do the entire topic here. मैम, it is alternate minimum tax. क्या मतलब क्या? What do you mean by alternate minimum tax? कि at least minimum इतना tax तो you have to pay. If you are an assessee other than company, मैम क्यों company को why you have not taken? Because for company minimum alternate tax का concept is applicable. उनका concept अलग है. For other assessee it is alternate minimum tax. तो ये बोलता है कि in case of alternate minimum tax, if you find कि other assessee, मैम other assessee भी बोलो ना कौन है? LLP, partnership firm. It could be what? It could be cooperative society. और कौन हो सकता है मैम? It could be individual, it could be HUF, मतलब other than company जितने भी हैं, AOP, BOI, that is other SSC. If you find other SSC की income में you have 10AA का deduction. 10AA मतलब SCZ deduction. Something is there, SCZ का deduction. If you find deduction under 80IA to RRB except ATP, ये क्या है? Specifically ATP is given for cooperative societies. उसको हटा दिया है. If you find, इसी के लिए I have started this topic. If you find section, कौन सा section में? Section 35AD. If you find deduction of section 35AD, इसी के लिए I have started the topic. तो ये क्या बोलता है? 35AD मतलब specified businesses. And in specified business, it has been written कि 100% deduction will be allowed for capital expenditure. अभी पढ़ेंगे PGBP में कि 35AD क्या कहता है कि 100% deduction is allowed in case of capital expenditure. एक सेकंड में, why you are focusing on word capital expenditure? Because capital expenditure पे you get depreciation. But ma'am, if we claim depreciation, तो would they allow 100% deduction? नहीं, कोई एक चीज. If you have taken 35AD का deduction, that is 100% deduction, so depreciation is not allowed. Any one benefit you can claim. But यहाँ पे सुनो ना क्या हो रहा है. Everyone pay attention. यहाँ बोल रहे हैं in order to calculate adjusted total income, क्या calculate करना है? Adjusted total income. Add back, add back, add back. क्या हो रहा है इसका मतलब? What do you mean by add back? Add back से क्या हो गया? इनकम वापस जनरेट हो रहा है, इंक्रीज हो गया. ना, add back का मतलब 35AD is specifically deduction. No, specified 35AD क्या है? ये सब एक्सपेंसेस अपन ने. Understood. Mute yourself. 35AD means, ma'am, this is deduction you are adding back. Deduction वापिस ले लिया. Deduction added back reversal. अब हम पता है क्या बोलेंगे? If you want to take 100% deduction, okay. Any one benefit is available to me. Any one benefit is available, either depreciation, either 100%. So for the purpose of calculation of adjusted total income, when you want me to add back my 100% deduction, give me mandatory depreciation. So ma'am, यहाँ नहीं हुआ ये, इस केस में भी नहीं हुआ. यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि depreciation is mandatory. If you want to reverse my any benefit, तो उसका अगर capital expenditure है तो I want depreciation. Understood? So what are the three linkage for depreciation? Tell me mandatory words. Unabsorbed depreciation, first one. 10AA. 10AA, 30%. AMT. AMT में specifically 35AD. It is not getting in case of 10AA. देखो ना मैंने cross किया है. It is not due to 10AA, not due to 80IA to RRB. Specifically क्यों हो रहा है? Because 35 का deduction reversal हुआ है and 35AD, when you will read with me, this line has been mentioned. Either you can claim depreciation or you can claim this 35AD.
तो जब 35 AD का रिवर्सल है तो दे विल से गिव अस डेप्रिसिएशन। और क्या है बताओ? Section 32. Section 32. सेक्शन 32 तो खुद ही डेप्रिसिएशन का मैंडेटरी वर्ड से अभी तुमने बताया था ये चीजें मैंडेटरी, एक अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। देन इनफाइनाइट लाइफ फॉर व्हिच इट कुड बी कैरी फॉरवर्ड फॉर इनफाइनाइट लाइफ, वो भी बिकॉज ऑफ मैंडेटरी। एंड दिस 35 AD AMT के केस में इफ यू रिवर्स 35 AD you have to compulsory give depreciation, that is again due to that word, एक word mandatory। अब AMT में कंप्लीट कर दूं मैम। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में इफ वी डू नेट टोटल इनकम में ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, वी हैव एडेड दिस एंड वी हैव सब्ट्रैक्टेड डेप्रिसिएशन, दैट विल गिव यू एडजस्टेड total income. This is nothing but your adjusted total income. And if your adjusted total income is greater than, बड़े अक्षर में लिख रही हूँ मैं, if it is greater than 20 lakh, then only alternate minimum tax का concept is applicable. If it is now equal to 20 lakh, not applicable. Less than 20 lakh, not applicable. Ma'am, we are individual. हम पे MT क्यों एप्लीकेबल नहीं? बिकॉज यू डोंट हैव 10 डबल, बिकॉज यू डोंट हैव 35 AD का एनी डिडक्शन, बिकॉज यू डोंट हैव 80 IA से RRB का कोई भी डिडक्शन नहीं। इफ यू हैव एनी ऑफ दिस थ्री, देन ओनली इन केस ऑफ अदर SSC alternate minimum tax का कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल। And after calculation of adjusted total income, if you have greater than 20 lakh adjusted total income, then only alternate minimum tax is applicable. Understood? तो पहला criteria to apply alternate minimum tax, check this three deductions. 10 AA है क्या? 80 IA to RRB है क्या? और 35 AD है क्या? If it is not there, भूल जाओ, alternate minimum tax not applicable. If it is applicable, तो second condition क्या है मैम? Second condition is my adjusted total income should be greater than 20 lakh. तो दो condition है। फर्स्ट यस है तो सेकंड चेक करना है, फर्स्ट नो है तो भूल ही जाओ कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स होगा। मैम क्वेश्चन नंबर 2, स्पेसिफिकली गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2, दे हैव गिवन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इन दैट दे हैव गिवन 10 डबल। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैव क्लेम डिडक्शन ऑफ 10 डबल, या फिर दे हैव टेकन डिडक्शन 35 AD। ठीक है, सुनना क्वेश्चन नंबर 2, they have given की limited liability partnership 35 AD लिया, या फिर they have taken what 10 AA as the case में भी, या 80 IA to RRB का deduction, and they say calculate tax liability। क्या बोला? calculate tax liability खत्म। the most common mistake of a student, you will calculate tax liability on the basis of normal provisions। LLP मतलब पार्टनरशिप on 30% is applicable, done, this is my tax liability। सोचो other SSC, yes, they are having 35 AD or 80 IA, whatever they have given, yes। तो if even if it is not mentioned, सीधे लिखा है tax liability calculate करो, that means calculate as per alternate, calculate as per normal provision and then compare कि कितना पे करना है। Understood? So the most common mistake, even you find other SSC, you find 35 AD ये, and they have given की tax liability calculate करनी है। सुनो मेरी बात, they have given calculate tax liability, so definitely alternate minimum tax applicable। Second, they have given NLP, they have given 10 AA या 80 IA, whatever, तीन में से कुछ भी है, but they say calculate total income। अब तुम टोटल इनकम के केस में डू नॉट अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, बिकॉज टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछा है उसमें, दे हैव जस्ट आस्क्ड यू टू कैलकुलेट टोटल इनकम। तो तुम टैक्स लायबिलिटी पे आके यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एंटायर वेस्ट ऑफ टाइम। और ये छोटी छोटी मिस्टेक कहाँ मिलती है? मैम दिख गया LLP, मैम ये दिख गया, ये हो गया, हमको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ओनली आस्किंग टोटल इनकम। इफ इट इज आस्किंग टैक्स लायबिलिटी, देन यू हैव टू कैलकुलेट एज पर नॉर्मल, एज पर अल्टरनेट, देन कंपेयर। डन? आया? ठीक है। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम।
भाई मैम क्वेश्चन नंबर 2 क्यों बोला? क्वेश्चन नंबर 1 तो 90% असेसमेंट ऑफ कंपनी है, 90%। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो सकता है या फिर वही चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकता है, एज आई टोल्ड यू। एंड आई होप जिनको मैंने डे 1 का टारगेट दिया था दे वुड हैव कंप्लीटेड, एंड इन डे 1 टारगेट प्रॉपरली 4 पेपर का एनालिसिस इज डन। सो आर यू गेटिंग व्हाई दैट 4 पेपर का एनालिसिस की प्रूफ हो जाए ट्रेंड चल रहा है सेम, सिर्फ चेंज क्या होता है 30%। मुट्ठी में किसको रखना है, ग्रिप में किसको रखना है, वो 70% दैट इज कमिंग टू बी सेम, क्योंकि पास 70% कराएगा और एड ऑन क्या देता है वो चेंज ऑफ 30%। ठीक है, सो इफ एनीवन who has just joined from PGPP has not yet completed day 1 का lecture, mandatory to complete day 1 का lecture। ठीक है, डन। चलो अब मैं एक तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम ले रही हूँ। क्यों एक्स्ट्रा टाइम ले रही हूँ? बिकॉज स्टिकी नोट्स को कैसे कवर करते, स्टिकी नोट में इन चीजों को कैसे करते वो मैं बता रही हूँ, तो इट विल टेक अस 15 to 20 minutes। आज मैं इससे ज्यादा फिर आई वुड नॉट बी एबल टू स्टार्ट। So are you getting? I want to tell you this कि how can you cover the entire provisions in sticky note? So are you having sticky notes right now? निकाल लो। अब टारगेट क्या करने वाले मैम? हर एक चैप्टर को स्टिकी नोट में कवर करना है। इतना स्मॉल हो जाना चाहिए कि स्टिकी नोट भी पढ़ लिया ना तो मेरे को पता है कि व्हाट इज द प्रोविजंस। ठीक है, चलो टेक आउट योर स्टिकी नोट एंड ट्राई। वो इतने छुटकू से नहीं चाहिए, नोट वाइज थोड़े से बड़े होते हैं नोट्स के लिए, एटलीस्ट दैट। राइट नाउ इफ यू डोंट हैव स्टिकी नोट टेक अ पेज, अभी उसमें लिख लो, बट मैंडेटरी बाय स्टिकी नोट्स। ठीक है, इससे भी एक बड़ा साइज आता है सुषमा, वो नोट्स के लिए होता है, एक और बड़ा साइज होता है। चलो अभी मैं क्या कवर करवा रही हूँ आई एम ट्राइंग टू कवर ओनली, मैं तुम्हें एक डेमो दे रही हूँ बिकॉज हर रोज तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम लोग सब कुछ, बट आई एम गिविंग यू अ डेमो कि इसको कवर कैसे करते हैं। तो आई एम गोइंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 32, स्पेसिफिकली सेक्शन 32 सबसे ज्यादा लेंथी है, तो हम सेक्शन नंबर 32 को ही जाके कवर करें। ठीक है, दिस इज माई पेज। And this is my sticky note। ठीक है, पूरा फुल फिलिंग ऑफ द स्टिकी नोट आई विल गेट नाउ। चलो तो मैम सेक्शन नंबर 32 से क्या क्या पढ़ा था हमने, हम आ जाते हैं सेक्शन, तुम लोग मत ओपन करो, मुझे ही करने दो। ठीक है, सबसे पहले मैम सेक्शन नंबर 32 का पॉइंटर्स वी आर क्रिएटिंग, यहाँ पे लिखोगे सेक्शन 32, दैट इज मैम डेप्रिसिएशन। बस सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। पॉइंटर 1 मैम मैंडेटरी। ठीक है मैम, पॉइंटर 2 आर यू गेटिंग? मैं जानबूझ के छोटा लिख रही हूँ बिकॉज वी हैव टू कवर एवरीथिंग इन अ स्टिकी नोट। मैम इट इज मैंडेटरी। सेकेंड मेथड, 2 मेथड, one is SLM and one is WDV। SLM किसको? पावर जनरेटिंग यूनिट, WDV ऑल। ठीक है मैम, SLM असेट वाइज, मैम WDV ब्लॉक ऑफ असेट। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, अभी मैंने छोटी सी चीज लिखी, कैन यू रिकॉल एवरीथिंग कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ के रखा है मैम? और असेट वाइज पे जाए थोड़ा, असेट वाइज एक्चुअल कॉस्ट 100, ठीक है, WDV 80, ये क्या लिख रही हूँ मैं? आर यू गेटिंग? वो जो आज एग्जाम्पल के बस वही लिख रही हूँ, WDV 80, सेल्स प्राइस 117, एक ही लिख रही हूँ मैं, दैट आई हैव टू रिवाइज। ठीक है, अब मैं थोड़ा राइटिंग बड़ी कर रही हूँ बिकॉज वो प्रॉपर लिखा नहीं पा रहा है, बट यू हैव टू राइट लाइक दिस ओनली, इतना छोटा छोटा कि यू कैन कवर एवरीथिंग। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा मैम, सबसे पहले सेल्स प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट, that will give me 17 and then remaining कहाँ पे जाएगा, remaining 20. This will be P&L and this will be capital gain but short term. पूरी की पूरी कहानी जो एक पेज में लिख के रखी है खत्म हो गई मैम। और क्या है इसमें, इफ प्रॉफिट जनरल क्यों लिख रही हूँ मैं पता है, बिकॉज एक्चुअल कॉस्ट से ऊपर नहीं है, माई सेल्स प्राइस इज नॉट मोर देन एक्चुअल कॉस्ट। मैं जनरल लिख रही हूँ टू अंडरस्टैंड कि जनरल वाले प्रॉफिट की बात हो रही है। तो क्या जाएगा, क्रेडिट ऑफ P&L। इफ लॉस तो क्या लिख दूं अब मैं, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। आर यू गेटिंग? सब तो कवर हो गया पूरा SLM का। मैम ब्लॉक ऑफ असेट में आई एम टर्निंग द पेज, मैं पेज टर्न कर रही हूँ, मैं प्रॉपरली एक एक का लिखते जाती हूँ। मैम यहाँ पे दैट इज अभी आपने जो बताया, यहाँ ब्लॉक ऑफ असेट में ऐसे लाइन करके अब हम क्या लिखेंगे इन केस ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट। तो ब्लॉक ऑफ असेट में ओपनिंग WDV प्लस परचेस less than 180 days, greater than 180 days, not put to use। क्या लिख दिया, not put to use। और इसके बाद क्या आएगा मैम, मनी पेबल। इसके बाद क्या आएगा मैम, मनी पेबल के बाद क्लोजिंग WDV। नाउ मैम टू केस of capital gain calculation। Block cease to exist, one asset, one purposely लिख रही हूँ मैं सिर्फ, हाँ जरूरी नहीं एक ही asset है, 2 assets भी हो सकती है, ठीक है। one asset sold at higher than opening plus purchase, then always short term capital gain or loss, as the case may be, it would be always short term। WDV can't be negative। ये क्यों लिखा WDV cannot be negative? Can you just tell me कि रीजन क्या है कि क्यों नेगेटिव मना कर दिया, कुछ था इससे रिलेटेड? मैम मेल हो जाएगा ना अगर नेगेटिव है है। हमेशा। That means suppose सेल्स प्राइस हमारा जो है that is going beyond opening plus WDV, तो पूरा सेल्स प्राइस माइनस नहीं करना, उसको सिर्फ नील पे लेके आना है, नेगेटिव नहीं करना। रिमेम्बर दैट। लिख लिया ये, डन। लिखो जल्दी। Ma'am, that second point, could you please explain again? Ma'am? This one, Yeah, yes, ma'am. suppose you have entire block of the asset, there are 7 assets in that, and out of 7 assets only 2 assets you have sold. Entire block was having a value of WDV 15 lakh, but only these 2 assets you have sold for 17 lakh. So you have exhausted entire value of the block. So in that case also you have to calculate capital gain. Yesterday we have done this. Okay. मैम ये मनी पेएबल क्यों लिखते हैं मैम? लिखते मनी पेबल है, बट एक्चुअली वो सेल्स ही होता है। मनी पेबल मतलब सामने वाला हमको कितना मनी पे करने वाला है, सॉरी हमको कितना मनी मिलने वाला है, एग्जैक्टली सेल्स है। तो वो सामने वाले के रिस्पेक्ट में लिखते हैं,
एंड दैट इज नो लॉजिक. आप सेल्स प्राइस भी लिखते हैं सामने वाले के उससे तो भी वही होता. So the money payable is like purchases made but not the payment made. No logic, just normal money payable they have used. There is actually no logic for it. Okay. अब इसका मीनिंग भी समझ में आ गया. इफ यू आर a registered owner or a beneficial owner, then also you will get. And rate is decided on the basis of use of asset. We have done that. वही लिखा है. डन. समझ गए. 50% का मेन चीज लिख दिया अपन ने कि चेक कब करना है भाई. Year of acquisition and put to use should be same. If put to use, मैम 4th पॉइंट क्या लिखा है? rate is decided on use basis. This is use basis. Put to use. Done. मैम अगर परचेज करके रख लेते हैं और पुट टू यूज नेक्स्ट ईयर में करते तो अभी मैम एडिशनल मिलता है डेप्रिसिएशन. अभी एडिशनल पे आएंगे ना, फिर करते हैं. इतना हो गया. लिखो आगे.
This I am writing on next page. Okay. This is additional. You have to write here. मैं डिक्टेट कर रही हूँ. प्लांट एंड मशीनरी के इधर लिखो. नॉट सेकेंड हैंड. Not motor vehicle, aircraft. Office of appliances. लिखा ना रेसिडेंट और एकोमोडेशन. ऑफिस लिख लो एक बार. Ma'am, ma'am, I need to leave now, ma'am. I have messaged you. Okay, okay, you can. Okay, thank you, ma'am. Done. Now what we will write about 10th point. अब 10th point किसका है? Actual cost. You should write in small handwriting. ठीक है? मैम एक क्वेरी थी. एक मिनट बस, एक मिनट रुक जाओ. Writing small handwriting, okay?
Answer I have not written purposely. आंसर यू हैव टू राइट। हाँ, इसका क्या है? इसका नील है, इसका फेयर मार्केट वैल्यू है, इसका WDV ऑब्लिक कॉस्ट, इसका फेयर मार्केट वैल्यू डिसाइडेड बाय AO ऑन द परमिशन ऑफ जॉइंट कमिश्नर। इसका क्या है? इसका क्या है? एवरीवेयर आंसर यू हैव टू राइट इन वन वर्ड और वन लाइनर, छोटा सा। डन, रिटर्न। मैम जो एडिशनल डेप्रिसिएशन रहता है वो कॉस्ट से लेस करना है, जैसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेस करते हैं WDV से लेस। asset के। यस अब एक क्वेश्चन था कि मैम आज हमने एक्वायर की असेट, वी हैव एक्वायर्ड द असेट टुडे बट पुट टू यूज इन नेक्स्ट ईयर, so would additional depreciation be allowed? Yes, additional depreciation will be allowed because less than or equal to 180 days. So less than could be even you have not put to use because वो investment allowance था जहाँ पे आपको put to use same year में करना होता है। Depreciation, additional depreciation does not have this condition. ठीक है सुष्मित? चलो। मैम ये एक और क्वेश्चन निकालते ना मैम, बिल्डिंग वाज यूज्ड फॉर अदर पर्पस एंड नाउ ब्रॉट, वो NR वाला, उसके अंदर भी मैम तुम्हारी आवाज क्रैक हो रही क्या है। ये लेना चाहिए क्या एडिशनल वाला? Your voice is cracking. You Ma'am, recorded I was saying- audio. NR taxation वाला पॉइंट था ना मैम, ब्रॉट टू इंडिया, एनी एसेट ब्रॉट टू इंडिया, तो उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है नोशनल वाला, तो उसके अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन का होता है क्या मैम कुछ उसके अंदर? उसको कैसे कैलकुलेट करना होता है वो सब कुछ उसमें है नहीं मैम? कुछ नहीं, नोशनल कैसे? Suppose you have purchased building on 2002. In 2010 you put to use for the purpose of business. तो current rate of depreciation के हिसाब से 2 से लेके 10 तक depreciation we will reduce. Rate current होगा। आज जो rate चल रहा है, building you have taken, today the rate of the building is 10% depreciation. So 2002 से what was the actual cost? We will reduce 10%, then 10%, then 10%. इतना। But rate current होगा और जब से तुमने खरीदे, the day you put to use, till that time depreciation will be reduced. इसमें एडिशनल का भी इफेक्ट आना चाहिए क्या मैम कि नहीं आना? Additional कैसे आएगा? Building is not plant and machinery, and additional is only on plant and machinery. हाँ मैम, अगर प्लांट एंड मशीनरी है और उसको ना पहले नहीं कर रहे थे यूज, और तो Now, sir, NR के अंदर NR के अंदर you cannot give that this additional depreciation का concept is not है। ठीक है?
अब उसका भी रीजन क्या है, एक बार उसके लिए पहले तुम ही एक बार एडिशनल डेप्रिसिएशन फिर से अच्छे से पढ़ना. You will find the reason over there कि why additional depreciation का concept वहाँ क्यों applicable नहीं है, because the year you purchase, in that year 20%. If in that year not put to use, ठीक है, उधर भी put to use नहीं है. अब एना ने 2002 में खरीदा था, now he is bringing it in 2010 in my business. Already time elapse हो चुका है. हाँ वो एक सेकंड हैंड भी हो जाएगा ना मैम, वो बात भी हो जाएगी. ठीक है. अब दूसरी चीज, एना ने वहां खरीदा. सेकंड, योर आंसर कि मैम सेकंड हैंड है वो, क्यों? सेकंड हैंड पे तो अलाउड ही नहीं है वैसे भी. ठीक है. तो फॉर दैट रीजन एडिशनल डेप्रिसिएशन पे एप्लीकेबल नहीं है. अब बताओ मुझे 2 स्टिकी नोट्स, आई विल से तुम्हारे लिए अभी हैबिट नहीं है, किसी की राइटिंग छोटी किसी की बड़ी, वॉट एवर इट इज, ये कितने पेज से? 5-7 पेजेस एटलीस्ट, है ना. Only in 2 sticky note have we covered each and every keyword as well as concept. चलो अब एग्जाम में तुम रिवाइज करना इसको. चलो एग्जाम तो छोड़ो, अभी तुम अगर ये स्टिकी नोट को प्रॉपरली लिख लोगे एंड यू विल रिवाइज, हार्डली इट विल टेक 2-4 मिनट्स और 5 मिनट्स. ये क्या हो रहा है? इफ आई एम डूइंग फ्रॉम द बुक 32 का सेक्शन करने में नहीं करके फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम आई विल टेक 15 मिनट्स मिनिमम ही बोला है मैंने. 15 minutes. Instead of that, I am reading my sticky notes. 5 minutes I will take. For 10 minutes cumulatively her section में we will save. So that is the reason I will share, if I get the time, Palak का interview I will share. At that time also we tried कि everything, every topic, जो भी topic है ना तुम्हारा, front page पे sticky notes में it should get covered. बड़ा टॉपिक कवर इन स्टिकी नोट्स. एंड एक्चुअली शी आल्सो डिड दैट, स्टिकी नोट एट द टाइम ऑफ एग्जाम. नहीं, जब भी अब मैं रिवीजन का टारगेट देती थी ना, व्हेन आई गिव द टारगेट ऑफ रिवीजन, ये लोग बुक नहीं करते थे. दे यूज्ड टू डू व्हाट? दे यूज्ड टू डू दैट स्टिकी नोट. तो वो क्या रहा है, रिवीजन का टाइम ऑलरेडी गेटिंग रिड्यूस्ड. यू आर गेटिंग प्रिसाइज कि दिस आर द कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन कवर्ड. और 10 pointers we have created, only 10 pointers instead of इतना सारा lump sum that has been given. Now किसको दिमाग ज्यादा लगाना है? Now practice more on questions. Instead of that क्या करो? Practice more and more on your questions. क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन करना, प्रोविजन याद अपन करेंगे. What you have to practice? लिख के do the practice of questions. Okay. So for that reason, अभी मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही डेमो इज पॉसिबल, यू वुड अंडरस्टैंड, नहीं तो ऐसे तो क्लास पता नहीं अभी कितना जाएगी. सो दिस वाज द डेमो कि एवरी टाइम अब मैं तुम लोग को टारगेट देना स्टार्ट करूं तो यू हैव टू कंप्लीट इट लाइक दैट कि एक स्टिकी नोट में कितना मैं पॉसिबल कवर कर लूं. सेकेंड थिंग, वन डे अगेन आई विल गिव यू अ डेमो कि हाईलाइटिंग कैसे होती है. सो सम ऑफ द चैप्टर वी विल नॉट कवर इन स्टिकी नोट्स because possible नहीं होगा, but some of the chapter we will highlight in such a way कि only if you read that highlighted words ना you will find कि यार ये तो सब समझ में आ गया. Everything again recalled. So that means कुछ chapter highlighting सीखो, कुछ chapter का sticky note सीखो, and you will find कि already concise हो चुका है. ठीक है? Because छोटा हो जाएगा तो multiple revision will be possible. And if you do the books, एक दो रिवीजन में भी यू विल गेट एग्जॉस्टेड कि हो गया है, बहुत हो गया अभी. ठीक है. चलो, तो अगेन टुमारो सेम टाइम 8:30. थोड़ा सा आई विल ट्राई, अब 10:30 तक वी शुड एक्सटेंड, तो थोड़ा सा तुम्हारा टाइम पे कोर्स हो जाएगा. ठीक है. चलो, ओके.